respected Dean Technology, Dr. Alaknanda Ma'am, Head of the Departments, our distinguished alumni and guest of today's program, Dr. Gaurav Tiwari, his mother-in-law, Madam, faculty members, and the award-winning students. I welcome you all for today's program related to the awards instituted by Dr. Gaurav Tiwari in fond memory of his mother, late Srimati Mithilesh Tiwari. Dr. Gaurav Tiwari has been a distinguished alumni of College of Technology with ID number 18825 during 1990 to 94 and has been himself a gold medalist. After pursuing his BTech from this university, he moved to University of Manitoba in order to carry out the higher studies MS and PhD in food process and chemical engineering. Dr. Gaurav Tiwari is based in Richmond Hill, ON, Canada for more than 2 decades and is associated with meat and poultry industry. I am happy to intimate here that Dr. Tiwari, apart from a passionate academician, brilliant student, achieving scholastic merits, being in the active industry of meat and poultry in Canada, United States, expanding to many more countries like Dubai, and more recently to India, bears a multifaceted personality. He is not only very jovial, a good dancer, with a literary temperament, but is animal loving. Very briefly and quickly, I would like to highlight some of the characteristics he typically carries in his personality. That Dr. Tiwari, being a blend of academics and industry entrepreneur, is still active in making good publications in referred journals. I have a list of top 20 most referred research papers published by Dr. Tiwari. Besides that, he has written a very popular book on advances in thermal and non-thermal food preservation, many book chapters, articles in referred proceedings, many patents to his credit, and was in academics in the University of Manitoba. Very recently, on 24th of last month, we have his teacher with us, again an alumni of our university, Professor Divri Singh Jayas, who is presently the President and CEO designate of Lethbridge University and is presently on his administrative leave. Dr. Tiwari, to his credit, has a very unique development of a revolutionary technology known as Zero Ox Tech, which he has patented to his credit and is very popular in development. It is related to the prolonging the self-sustainability of the meat during its transportation and preservation.
I am happy to apprise the House that this technology is gaining popularity in many other countries and the governments have recognized their form. And recently the Canadian government has accepted it as the one of the 4 revolutionary and game-changing technology of the world in agro-food industry. For all this and instituting this particular award in the fond memory of his mother, there is a brief background which I would like to narrate here in 4 or 5 lines. Born on 22nd July 1971, Dr. Gaurav Tiwari has been very dear and associated emotionally with his mother, Srimati Mithilesh Tiwari, who was married to a budding professor at a very incredibly tender age. Subsequently, apart from pursuing her education, starting from high school, intermediate, bachelor's, master's, and bachelor of education degrees after marriage, and blessed with 3 sons, Dr. Gaurav Tiwari, the middle one, fondly with the nickname Guddu, suffered many fatal and life-threatening diseases during his early childhood. Mrs. Mithilesh Tiwari, his mother, not only being a very loving and compassionate human being, discharged and carried on very successfully, efficiently, all duties related to on the domestic front, social and family fronts. She was very spiritual, having deep belief in the Hindu culture, and always very promoting the importance of education. So this was highlighted to Guddu as well in his early childhood, and it is because of this imprint and the motivation and the inspiration which he received during his early childhood, he started his school. We need a big round of applause for Dr. Gaurav Tiwari, who stood first in his class starting from 3rd grade. And after high school, was awardee of the India's National Merit Scholarship, gold medal here in COT, Pantnagar University, and rose to senior position of VP in University of Manipur. So there are many more things to be highlighted here about Dr. Gaurav Tiwari, but because of the constraints of time, one peculiar characteristic of Pantnagarians, which is being carried forward by Dr. Gaurav Tiwari as well, is related to a love for animals. Apart from his expertise, business and leadership skills, technical skills, his education and association with many professional bodies, Dr. Gaurav Tiwari is also carrying forward the social obligations. Besides instituting this particular award here with Pantnagar Technology Alumni Association for the first 3 toppers for their academic excellence in BTech Agriculture Engineering, he has also instituted similar type of award in the fond memory of his mother, Mrs. Mithilesh Tiwari, Memorial Award for $1,000 to the student achieving highest GPA in food process program in Conestoga College, ON, Canada.
Then annual Mrs. Mithilesh Tiwari scholarship up to $5,000 to needy and promising students attending Canadian universities. Altogether with this, he has recently constructed a building of orphanage for ostracized girls in Bakshi Ka Talab, Lucknow from his own pocket. This is also in the memory of his mother, late Srimati Mithilesh Tiwari. And a building for stray cow shelter, also in Bakshi Ka Talab, Lucknow, in memory of his mother. It is a matter of pride that Dr. Gaurav Tiwari filed a PIL looking into the atrocities and the cruelty being done by mafia against elephants in the state of Kerala, in the High Court of Kerala. It is a matter of pride and happiness for all of us that he has won that case. It not only sought the attention of the High Court of Kerala, immediately was constituted a 3-bench court to look into this PIL, and the decision is won by Dr. Gaurav Tiwari. The 3-bench judge directed the government of Kerala to institute a fund more than 620 crores for elephant welfare in the state of Kerala. So with this selfless social obligations, apart from the business compulsions and the obligations, Dr. Gaurav Tiwari is associated with many professional bodies and is expanding its business to India as well. So this is in brief a background which motivated Dr. Gaurav Tiwari for helping those upcoming students which somehow find difficult because of the financial limitations. Dr. Gaurav Tiwari, still we are having 4 more students in College of Technology which are going through the same problem. And because of their poor academic financial background, even at the 11th hour, just before the registration, the banks also refuse to grant the loan. So somehow we are looking for such generous and caring type of alumni who would like to help their younger brothers and sisters. So before starting the program, I would like to request Dr. Gaurav Tiwari to pay his tributes to his mother. Please, Dr. Gaurav Tiwari. This portrait
is made by Mrs. Tiwari, who is a fine painter. I now would request to proceed further in the program. I would like to invite to formally welcome our dean. हम इन्हीं का करते हैं ना, इन्हीं मेरा आज करने का कुछ मतलब नहीं है, आज इनका वेलकम है। उनको भी दें। बहुत बहुत स्वागत है। Now I request the men to permit to start the award ceremony. So, with regard to the selection of the students, we not only gathered the information of students having academic performance in BTech Agriculture Engineering from the Department of Agriculture Engineering and the Registrar Office. We sorted them out with our executive committee and looked into the wording of the MOU which we have signed with Dr. Gaurav Tiwari, and accordingly I am happy to announce that the committee has adjusted Miss Janvi Joshi, ID number 53379, who has secured an overall grade point average of 8.049 and is declared first position with gold medal plus a cash prize of 50,000. Under this Srimati Mithilesh Tiwari Meritorious Award for year 2021-22. These BTech students are from 2018 to 22. The recently passed out students last year in July. जो लोग पास आउट हो गए हैं उनको हम लोग अगर स्कॉलरशिप देंगे भी या प्राइज देंगे तो उनको हम किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चों को अगर हम फाइनेंस करें तो उसको कुछ एजुकेशन में हेल्प हो सकती है। दूसरा हम लोग एक अलग इसके लिए कर लेंगे, ये तो जो है उसको रहने दीजिए, फिर उसके लिए अलग कर लेंगे। गुड, वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है। We were having a discussion with Dr. Gaurav Tiwari in the evening yesterday and morning as well. So we pointed out some of the points like getting prepared these 3 medals, 1 silver, 1 gold, 1 bronze, is a difficult task in the sense nobody is ready to prepare a medal, हाँ, providing only 1 in each category. And also with regard to the colleges. So that matter has been discussed with Dr. Gaurav और Tiwari. दूसरा जैसे ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो हम लोग यूनिवर्सिटी से भी इन लोगों को गोल्ड मेडल मिलेगा। मैं जब लास्ट Because of certain limitations and the rules and regulations with regard to the transfer of money, we are not having the FCRA exemption. We have the income tax exemption under 80, but could not afford to apply for FCRA, very strict. And he also find difficulty in making such type of currency transfer from abroad. ये फैकल्टी मेंबर्स जो खड़े हैं थोड़ा सा देर हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बेयर कर लें क्योंकि एक
हमारे एलुमनाई ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में जानो। आप लोगों को थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पर, बट आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज है और बहुत एक बड़ा स्टेप लिया गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी यंग फैकल्टी ज़रूर इसको समझे। So since he is expanding his business in India as well, and recently he has few projects here. So whatever earning during this year he will earn, out of that he will not only make this type of corpus, so that we can get such medals ready in bulk, and will also supplement our corpus in this. That's fine. And we'll also look into Yeah. helping those who are in Economically- Yeah, because Economically sorry, weaker, that I actually. think you briefly mentioned in your bio, my bio, sorry, that I already like in Supporting. COVID time. Yes, COVID you have time, lot of supported. lot of Canadian student You have- because they could not get extra work, whatever, so their visa was almost getting lost. That is why I started separate. It was case to case basis at my discretion. Is needy. So let's say somebody is already multi-crore and now they want another fund from Canada. So that I went on and helped whoever was needy. Okay. Sir, yeah, same model can be adopted here, but this will be separate from this. Let this award be whatever it is. Thank you. So, please perform this award to. Okay. So the committee has taken a decision to declare Mr. Rohit Sharma with ID number 53391, securing overall grade point of 8.009, and is declared to have secured the second position with a silver medal plus rupees 30,000 cash prize. Miss Shivani Bhatt, ID number 53395, with OGPA of 7.949, is declared to be awarded the third position with bronze medal plus rupees 20,000 cash prize. So, congratulations to the winners. It is purely on the basis of your academic performance, overall grade point average. Thank you so much. So with all good wishes, now I request Dr. Gaurav Tiwari and Dean Ma'am to present the medals, checks. नहीं वो साथ दीजिए, अच्छा Are लगेगा। you please? आइए आप, या यहाँ पे करते हैं, यहाँ ऐसे आ जाए। वो शायद कर लेंगे ताकि वो पीछे से मैडम वो आए। फोटोग्राफ फोटो आ नहीं नहीं वो वो पीछे भी आ जाएगा। पैनल चल रहा है। ठीक, आइए। So please come this side. कोई नहीं, आइए हम सब साथ खड़े होकर देंगे, आप आइए। चाहिए? Fine? तीनों लोग Miss Janvi Joshi, please come on the dais. मैडम आप इधर रहिए, स्टूडेंट आएगा और आप मेडल पहनाएंगे। जानवी जानवी आप बीच में हो बेटा। वो फोटो आ जाए ना बस ऐसे। Very nice. सर्टिफिकेट मैडम प्लीज। चेक जो है आइए प्लीज आप दोनों लोग Very good. थोड़ा ऐसे मैम इधर करते हैं, देखिए कैमरे प्लीज। की तरफ। प्लीज इधर देखिए मैम। बेटा मैडम थोड़ा और सा इधर आ जाए। थोड़ा मेडल थोड़ा नीचे आ जाए। फोटोग्राफ और ये सब चीज़ ऐसे आ जाए। हाँ। मैम एक हाथ से मेडल पकड़ लीजिए। कोई उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए हल्का सा। थोड़ा उसको ऊपर कर दो, वो जो है गांठ लगा देना। हाँ यस। सामने देखिए मैम। Congratulations. मिस्टर रोहित शर्मा।
आपने कॉटन यस संदीप सेकंड मैम सामने दिखे आप। अभी कहाँ जॉब कर रहे हो मैम आईटी ग्रुप एमटेक वेरी गुड पहली बच्ची मैडम शिवानी। शिवानी भट्ट। अच्छा कांग्रेचुलेशंस बेटा तुम क्या कर रहे हो रिसर्च में ऑटोनोमस आर्ट रेक्टिफिकेशन बहुत बढ़िया थोड़ा धीमे धीमे फोटो ले मैम मैडम बेटा मेडल थोड़ा और हाथ से पकड़ के ऐसे कर देना। हाँ हाँ बस good। मैम सामने रखिए साथ में आ जाइए आप भी आ जाइए साथ में फोटो सामने देखिए मैम एक बार तीनों तीनों आ जाइए एक बार तीनों आ जाइए बेटा। तीनों आ जाइए दोनों लोग आप भी आ जाओ एक ग्रुप बीच में आ जाइए आप लोग भी आइए आप लोग आ जाइए डॉक्टर साहब सोनिका आ जाओ। तिवारी जी मनीष आइए आइए मनीष जी आगे पीछे बोले इधर अच्छा बीच में आ जाओ बीच में आ जाओ। गौरव को ले लीजिए साथ में ले लीजिए आपको थोड़ा पीछे जाना गौरव आ जाइए आ जाइए ठीक है अरे ठीक है इतना तुम कहाँ फोटो बनवा रहे हो संदीप वो उनसे चलने में उनको दिक्कत है वेट संदीप में आराम से वहीं बिठा देंगे वो फिर उधर तक जाना पड़ेगा फिर उधर से आना पड़ेगा हाँ हाँ नहीं बस हम 2 मिनट हम खुद पहुँचे आप यहाँ बैठो। Opportunity to welcome Dr. Abhinav Mishra, who is fortunately with us, who is associate professor in the University of Georgia. So, प्लीज वेलकम बोलिए please welcome Mr. Abhinav Mishra, who is associate professor in the University of Georgia. So, we welcome on behalf of college, on behalf of our alumni association as well as PTA. किस बैच So, के हैं? he is agriculture engineering graduate from College of Technology from 2005 to 2009, and presently he is working as associate professor in the University of Georgia, US. So, welcome on behalf of college, on behalf of community. Please. So now I request Dr. Gaurav Tiwari to say few words for blessing our students and Dr. Gaurav Tiwari. इसको ऑन कर दीजिए Thank you, Dean Madam, esteemed faculty, students. Actually, I left India. I never worked here formally. Just after 2 weeks of my graduation, I was gone. लेकिन मेरी कोशिश रहती है जब इंडिया में आऊँ तो जो भी कार्य करूँ वो हिंदी में करूँ। हिंदी हमारी ठीक रही। If I would have returned, मैडम से मैं लास्ट ईयर स्टे कर रहा था, I would have tried for civil services and हिंदी would have been one of my subjects. बिल्कुल आप बता कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं है और कोई बहुत लंबा चौड़ा अचीवमेंट भी नहीं है। छोटी सी माँ की अभिलाषा को पूरा करने का ध्येय है। आई एम टिपिकल मामा's boy. Mummy said that wherever you go, your name should be written. So whether it's Central School Faizabad
यहाँ आप देख ही रहे हैं. And in Manitoba also, with all due respect to my professor and advisory board, I was the only candidate who finished his PhD work in a year, which is a record in world history. कोई हर व्यक्ति अपना अचीवमेंट करता है, अभी उसकी जर्नी रहती है. कभी कभी कोई पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते. But everybody has their journey. Everybody has their struggles, ups and downs throughout the life. But I think the goal should be कि जब आप सुबह उठें तो आप कोशिश ये करें कि किसी की आपके थ्रू मदद हो जाए. वो मदद पैसे से हो जाए जो कि तुरंत दिखाई पड़ती है तो अच्छा है. कभी कभी शब्द, किसी को प्रेम से गले लगना, पता है कोई अस्पताल में है उसको विजिट करना, अपना समय देना. आजकल तो आई नो व्हाट्सएप और ये सब है तो वर्चुअल लव भी वर्चुअल हो गया है. आई एम नॉट ए सोशल मीडिया पर्सन बट ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, लेकिन दैट शुड नॉट फेस द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी इन अस. और हम लोगों को, हम मनुष्य हैं, कई अचीवर्स होते हैं, सुपर अचीवर हो जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नहीं पहुंच पाया उसने कुछ कम प्रयास किया. क्या कारण रहा हो कि वो ना पहुंच पाया हो. तो जो भी कोई अचीव करे, इट इज़ ए नॉट ओनली मॉरल बट ह्यूमन ऑब्लिगेशन कि आप मदद करें, किसी भी स्तर पे करें. नंबर 1. नंबर 2, ट्राई टू लिव योर लाइफ. आई नो हमारा शायद हर व्यक्ति यहाँ पे कहता होगा कि हमारा गोल्डन टाइम जब आप अंडरग्रेड करते हैं तो बीतता है, पैसे की चिंता होती नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, नहीं होता दोस्त वगैरह कुछ मदद कर देते हैं. मैडम ने प्रोग्राम्स चलाए हैं, उनसे मदद हो जाती है. थोड़ा सा वरी फ्री रहते हैं. बट एट द सेम टाइम आप जो लाइफ पंतनगर में आप जीते हैं, कोशिश करिए कि वो लाइफ आपकी कंटिन्यूड रहे. आप अपनी लाइफ को बांटिए. अचीवमेंट है या नहीं है, आप जीना ना छोड़िए. और आप, जैसे सर ने कहा कि मैं ऐसा कोई प्रोग्राम मेरा नहीं था, मैं इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है. मैं आई हैव टू से दिस विद ऑल राइट. आई डोंट नो इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग. अब होगा कि मैं वही काम मैं करता हूँ जो मुझे मेरा दिल कहता है. मेरे दिमाग में भी दिमाग नहीं, दिल ही है. और बस मेरी यही कोशिश रहती है कि somebody should benefit whichever form or fashion. एनिमल वाला तो आप लोगों ने थोड़ा सा एक हल्की सी एक सिनॉप्सिस देखी, वो तो है. जो तीसरा मैसेज है, सेकंड मैसेज था कि आप अपनी लाइफ को जीना आराम से जीजिए, आराम से जिए. कोई बहुत लंबे चौड़े 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, अच्छे अच्छों के सर हमने देखे और अच्छे अच्छों के चले भी गए. और कोविड में तो बहुत ही, और देखिए कितना पूरे प्रकृति ने बता दिया आपको कि आपके हाथ में कुछ नहीं है. तो आप मदद करें, अच्छी लाइफ जिए, सुपर अचीविंग की तरफ बढ़ें जरूर, लेकिन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी ख़त्म हो गई या कुछ निगेटिव हो गया. लाइफ बहुत लंबी है, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट हो जाएंगे. So, I think please, अपने आप ही हो रहा है. या. और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आई थिंक जो मैंने चाहे मेरा मन था या मेरी लाइफ ऐसी रही कि आप अपने प्रोफेसर हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनको आप जितना रिगार्ड दे सकते हैं आप दें. क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ करे न करे, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है. और ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आप कुछ न कुछ जरूर करें, किसी की मदद करें या कुछ भी करें. किसी का कोई आपको अच्छा लग रहा है आइडियल, उसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक भावना वो रखें. और जब आप इन तीनों का
लाइफ को जीने का और मदद का और ये थर्ड फैक्टर जो है उसको करेंगे तो आई टेल यू कि बाय डिफ़ॉल्ट चमत्कार होते जाएंगे और काम आपका होता जाएगा। फिर मैंने कहा यदि नहीं भी हुआ इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई या कुछ है, वो सब एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल हम सब बराबर हैं और कोई किसी से ना बड़ा है ना छोटा है, हर की अपनी ज़िंदगी है और हर के अपने अचीवमेंट हैं और डेस्टिनी है। तो दैट डजंट मीन कि आप प्राउड हो जाएं या अगले को छोटा समझने लगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। चूँकि सर ने मुझे 30 सेकंड की ज़्यादा दी थी, आई एम ए वेरी हैवी प्रेजेंटर सो आई कैन टॉक बट लेकिन मैं बस एक इस चीज़ से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो मैंने एक छोटी सी कविता अपनी मम्मी पे लिखी थी जब वो चली गई, बहुत यंग डेथ हो गई मम्मी की। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स इन मैनिटोबा, हमारी जस्ट शादी हुई थी 2 महीना पहले। जो वाइफ ने पोर्ट्रेट बनाया वो राइट आफ्टर जो मम्मी की डेथ हुई तो एक फ़ोटो थी, उसी को देख के बनाया। तो मम्मी पे एक कविता थी कि कविता का टाइटल है सर उपमा। मैडम इसी पर में बिल्कुल बिल्कुल। कवि ये कह रहा है, माँ तेरी उपमा देने को करता है मेरा मन, तेरी उपमा देने को करता है मेरा मन, पर जब ये ध्यान आता है कि दिल वहीं रुक जाता है कि तेरी उपमा किससे दूं। माँ पृथ्वी से उपमा देने को करता है मेरा मन, क्योंकि जो पृथ्वी सबको जननी है, सबको पालती है, वैसे तो भी सबको पालती है, लेकिन जो प्रकृति वृष्टि करती है वो तू नहीं करती। माँ तेरा आकाश से उपमा को देने को करता है मेरा मन। आकाश सबको छाया देता है, तू भी सबको छाया देती है, अपनी ममता में पालती है, लेकिन आकाश जो कहर बन के विपदा के रूप में सबको परेशान करता है वो तुझ में नहीं है। माँ तेरा सागर से उपमा को करने को देता है मेरा मन, पर जब यह ध्यान आता है ये मन वहीं रुक जाता है कि सागर जैसी विशालता, सागर जैसा बड़ापन तुझ में है, लेकिन सागर जैसा खारापन तुझ में नहीं है। माँ कवि विचलता है, हर तरफ देखता है कि माँ की उपमा किससे की जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। माँ तू बता क्या करूं। तो माँ आशीर्वाद के रूप में कहती है कि बेटा परेशान मत हो, क्योंकि माँ की उपमा दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि माँ तो माँ है और उपमा उपमा है। Thank you, Dr. Tiwari. This program was fixed for today, 3rd March, in view of your visit to India for a very short time. But coincidentally with this recitation of this poem, I find it highly relevant, coinciding with the Women's Day. And we are celebrating it since yesterday, before yesterday. And during that we have invited many women achievers from our university and also from outside. And during that occasion, before yesterday, many of the words as used here in your poem were pointed out by Dean Men, that in order to highlight the strengths of the woman, she said that tolerance. You cannot compare with the tolerance with which the women are, right? Or matra, और जननी का रूप, हम लोग हैं माँ की। Thank you so much for which is highly relevant to the occasion. So please take your refreshment. Dean went to say few words for blessing the winners and also to bless the audience. थैंक यू अजीत सर। डॉक्टर गौरव, सबसे पहले तो मैं आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके साथ आपकी मदर इन लॉ आए, उनको भी मैं बहुत आभार देना चाहती हूँ कि आपने अपने मतलब तबीयत के बाद चलने में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आप यहाँ आए
ये बिल्कुल दिखाता है कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रति आपका कितना भाव है, आप अपने अल्मा मैटर से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद, और ये आपका जो जेस्चर है ये पूरी तरह से दिखाता है कि आप मम्मास बॉय हैं। और जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने आपका एक इंट्रोडक्शन दिया और उसमें बहुत सारी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ बताई, और मेरा भी ये मानना है कि जब हम इस तरह के कुछ काम करते हैं तो समाज की तो इसमें हेल्प हो ही रहती है, बट सबसे बड़ा उसका फैक्टर ये होता है कि हम लोगों को अच्छा लगता है। इस तरह का काम करने के बाद हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। तो मैं बिल्कुल गौरव जी के मन की बात समझ सकती हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि ये काम करके उनको बहुत संतुष्टि होती है, और उनकी माँ उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही। और जैसे उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हारा नाम हर बोर्ड पे देखना चाहती हूँ, और इसीलिए हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हुए और यहाँ पर भी बोर्ड में उनका नाम है। अब वो अपनी माँ को वही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, जगह जगह अपनी माता जी के लिए वो विभिन्न स्कीम्स चला रहे हैं, और उसके उनके प्रति अपने भाव प्रदर्शित करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। और मैं ये चाहती हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब मैं ये खुद भी मैं बोलना चाह रही थी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बिहाफ पे भी बोल दिया कि हमारा जो विमेंस वीक सेलिब्रेशन चल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट पे जो हम बात कर रहे हैं, मैं अगर गौरव कुछ हमारे लिए समय निकाल सके तो आज शाम को जो 3 बजे से हमारा सेशन है, मैं ये चाहती हूँ कि इनकी मिसाल हमें देनी पड़ेगी। विमेन एम्पावरमेंट या जो महिला का एक रोल होता है किसी भी फैमिली को बनाने में या अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने में, उसकी एक जीती जागती मिसाल है डॉक्टर गौरव। और आपकी माता बहुत धन्य है, बहुत महान है कि उन्होंने आप जैसे सुपुत्र को इतने अच्छे संस्कार दिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चियों को, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये पता लगे उनको कि महिला सिर्फ काम करने से ही सशक्तिकरण उसका नहीं माना जाता। वो अपने परिवार के अगर बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही है तो वो एक सशक्तिकरण हो रहा है, और उससे पूरे समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसलिए महिला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में, और उसको रिस्पेक्ट महिलाएं और पुरुष, पुरुष में उनके हस्बैंड्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और उनसे बड़े लोग भी हैं, उन सबको उनको एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो, जैसा मैंने कल कहा, वो एक मातृत्व है। उनकी एक भाव बिल्कुल अलग होते हैं। जो प्रेम, एक संसार में जो प्रेम की एक चीज आई है, वो हमें महिलाओं से ही मिली है। तो अगर गौरव अपना कैची धाम कर 3 साढ़े 3 बजे तक वापस होते हुए यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम देना चाहें, और जिस तरह की बात आपने बताई है, एक पुरुष होकर अपनी माँ के लिए जो आपके मन में श्रद्धा भाव है, वो हमारे बच्चों को एक्चुअली एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताता है। तो मैं आपको बहुत आभार देती हूँ और आपको बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप इतना जो ग्रैटिट्यूड की जो भावना आजकल के बच्चों में थोड़ा सा कम हो रही है, वो आपने दिखाई। और मैं यहाँ जितनी हमारी यंग फैकल्टी, उन्हें ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा लेट आए थे, कि इन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं, मेरिटोरियस, उस पर अभी 50,000 गोल्ड मेडलिस्ट जो टॉप कर रहा है बच्चा, 30,000 सेकेंड जो है, और 20,000 जो थर्ड बच्चा है, उसके लिए प्राइज मनी दिया है। जो प्राइज मनी बच्चों को आगे मोटिवेट करता है और वो आगे जीवन में करने के लिए उनको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और मैं इसके साथ थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेना चाहूँगी, क्योंकि गौरव, आप कनाडा में तो बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं। हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि हमारे कई बच्चे फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो और दूसरा, जो हमारे ओवरऑल बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, बहुत तरह का चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए भी कुछ हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा टॉप नहीं कर पाता, बट हम लोग जानते हैं, फैकल्टी ये जान रही होती है कि ये बच्चा हमारा इस पूरे ग्रुप में बेस्ट है, जो हर तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो आप अगर आगे इसको सोचें, थोड़ा सा इस पे आप विचार करें कि इस तरह का भी कुछ मोटिवेशन हमारे बच्चों को मिल सके, तो एक बहुत आपका सपोर्ट रहेगा। और इसी के साथ, जैसे एग्रीकल्चर में आप आगे बढ़कर आए हैं, और हम लोगों के, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर की जितनी यहाँ पे फैकल्टी बैठी है, और खासतौर पे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के, वो लोग तो इतना प्राउड फील करते हैं कि हमारी पास आउट बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, विश्व में नाम कमा रहे हैं, और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत
बहुत अच्छा जेस्चर है आपका, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और आज हमारे सारे हेड्स जो यहाँ पे बैठे हैं और जो दूसरी डिपार्टमेंट की फैकल्टी आई है, वो आपको देखकर वो लोग भी प्रेरणा लेंगे कि वो भी अपने जो पास आउट बच्चे हैं उनसे संपर्क बनाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी अपनी अपनी ब्रांचेस के बच्चों को इस तरह का एक पुरस्कार दें या उनको मोटिवेट करें। तो मेरे ख्याल से सारे हेड्स के लिए अब ये बहुत बड़ा आपने चैलेंज कर दिया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हेड तो बहुत खुश हैं कि उनके बच्चों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, बट बाकी सारे हेड्स इसको बहुत सीरियसली लें और उनको भी अपने एलुमनाइज को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें। और इसको हमें वाइडली स्प्रेड करना चाहिए, इसलिए कि सब लोगों को पता लगे कि लोग वापस अपनी जड़ों से जुड़कर अपने ही जो नई जनरेशन है उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ हमारे यंगस्टर्स खासतौर पे अपने जो एलुमनाइज हैं उनसे जुड़ें और उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि वो और इस कॉलेज से जुड़ें। और इस तरह से अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो आगे ये हमारा और नाम बढ़ाएंगे। तो आज आपकी माता जी को बिल्कुल शत शत नमन। और मैं वाकई में दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली वो बहुत महान है कि उन्होंने अपने सुपुत्र में इस तरह के संस्कार डाले जो और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं ने इन्फ्यूज़ की डॉक्टर गौरव तिवारी में ये सारे ललक और गुण। और न जाने क्यों वो बहुत ही अल्पायु में जो है ईश्वर ने अपने पास बुला लिया उनको, शायद सिर्फ 42 साल की एज में, 42 ईयर्स। तो लेकिन उतने में वो एक गौरव तिवारी समाज को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी जननी को सशत नमन। और माता जी को भी विशेष आभार हम लोग व्यक्त करते हैं कॉलेज की तरफ से, पंतनगर टेक्नोलॉजी एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, कि इतनी लंबी यात्रा इन परिस्थितियों में आप यहाँ आई हैं। और डॉक्टर गौरव तिवारी, आपका भी ये सौभाग्य है कि अभी भी एक माता जी का आपके आशीर्वाद है, वो आपके साथ यहाँ तक आई हैं। बल्कि डॉक्टर साहब मैं तो एक चीज और ये भी ऐड करूंगी कि जब आदमी ये सब काम तब तक नहीं कर पाता जब तक उसकी वाइफ का, उसकी फैमिली का उसको सपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए हम एक और महिला इनके पीछे हैं जो इनको ये सब काम करने की प्रेरणा देती हैं। और ये इनका बहुत अच्छा कहना है, जितना हम देते हैं ना भगवान उससे ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इनकी वाइफ को भी, वो भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार आप बोलिएगा। और डॉक्टर माथुर भी आ गए हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। एग्रीकल्चर वाले 50,000, 30,000, 20,000 का अपने बच्चों को प्राइज मनी दे रहे हैं। हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितना They deserve to. Basically, I mean, the industry is known by them, for them. शुरू से इतनी legacy है. It will take some time to grow us बस to बिल्कुल to उन्होंने that एक level. एग्जांपल लगा दिया है, अब रख दिया है। नहीं, we are working on that and let our alumni to become to achieve that level. और and इसको become बहुत अच्छे से mature. वेबसाइट पर हाईलाइट करेंगे। गोविंद जी कहाँ हैं, राजीव जी कहाँ हैं, ये लोग बहुत अच्छे से बताएंगे जिससे कि सब लोगों के लिए ये एक प्रेरणा है ना। मैडम डॉक्टर मिसेस तिवारी भी आई थी इंडिया, हाँ, लेकिन इनके बच्चे पिछली का बार। नहीं अभी भी आई थी दुबई से शो के बाद। लेकिन वो बच्चे का जो एग्जाम है छोटी वाली बेटी का, उस वजह से वो उसको attend करने के लिए पंतनगर के लिए कंपनी नहीं कर पाई। तो सभी लोगों का धन्यवाद, हमारे बहुत बहुत बधाइयाँ जो इन बच्चों को अवार्ड मिला है। और इट इज़ ए मोटिवेशन फॉर यू। बिल्कुल। अब तुम लोगों को भी जैसे इन्होंने आपको सपोर्ट किया, अब आगे चलकर आपको भी अपने कॉलेज के बच्चों को सपोर्ट करना होगा, है ना। चेन बनाई जा रही है, चेन आपको बननी है, आगे बिल्कुल। कंटिन्यू करनी है। बेटा जब आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, उससे आपको भी बहुत कुछ मिलता है। जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसका कोई मोल नहीं, ठीक है ना। जो दुआएं मिलती हैं वो कहते हैं उनकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना असर करती हैं।
तो जब कभी भी ऐसा मौका लगे और आपको कोई सुपात्र मिले कि जिसको जो है आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उसको बिना झिझक के आगे बढ़ के वो मदद कीजिए। तो ऐसा आज के कार्यक्रम का संदेश है सभी लोगों के लिए। मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का और सभी फैकल्टी मेंबर्स का जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ आके अपना समय दिया है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बस 10 सेकंड सर, आप ही बात को ऐड करते हुए जो कोविड टाइम में जो भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाई कनाडा में, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, एंड आई थिंक सम ऑफ यू वुड नो, यदि आप फीस नहीं दे रहे और इंटरनेशनल वीज़ा इज एसोसिएटेड तो आप रिपोर्ट हो जाएंगे। तो जो एक कुछ स्टूडेंट थे तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको, सर की बात में ऐड कर रहा हूँ कि सर इसको हम कैसे आपको Return लौटाएं, करेंगे। तो मैंने कहा यू हेल्प समवन, हाँ। सो कंटिन्यू इट। तो ये सर चेन है सर, मनुष्य है, मनुष्य को ये ऑब्लिगेशन है एक दूसरे को मदद करना। कंपटीशन ये वो तो सर लाइफ भर चलेगा, कौन किससे बड़ा बताइए, 45,000 करोड़ के लास्ट ईयर चले गए, मुझे तो पता लगा एक डॉलर भी नहीं ले गए साथ में। नहीं वो तो कोई भी नहीं लेके जाएगा। बट पॉइंट इज कि हेल्प करें और चेन बढ़ाएं। सर ने बहुत अच्छी बात कही, चेन बढ़ाएं, और ये सर ये चेन ही है, देखिए ये लीगेसी है। ये लेगेसी है कि पंतनगर देखिए, मतलब कि कोई देखिए विमल बैठे तो मतलब कोई किसी से मेरा इंटरेक्शन बहुत लोगों से नहीं था, बट इट इज दैट इन द एयर कह लीजिए या दिल में कह इसको लीजिए। आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है वेबसाइट पर। आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन कि आपने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, और मैं मतलब देयर आर नो We are वर्ड्स, so proud of you. और मुझे बड़ा अच्छा अच्छा बट लगा। गौरव एक चीज बताइए, आपके बायोडेटा में इन्होंने ये बोला कि यू आर एनिमल लवर और फिर आप मीट प्रिजर्वेशन का ही काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था। एक्चुअली मैडम यदि 2-3 कमेंट है। पहला तो है, मैं मैंने कभी छुआ भी होगी जब मुझे ये एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम माय पीएचडी वर्क एक्चुअली, तो उसमें डॉक्टर साहब को मालूम था गौरव मीट नहीं खाता, तो इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। एक्चुअली एक कर्व होता है मैडम, जो काफ़ी मैथमेटिक्स के लोग बैठे हैं सब समझ रहे होंगे। एक मेट कर्व है, इसे एम्पेरिकल इक्वेशन। तो मुझे घमंड नहीं है कहते हुए, लेकिन शायद मैं कहूँगा ताकि बिकॉज इट ऑल गोज टू एजुकेशन और मम्मी के लिए। तो मीट तो वो जब कर्व बन जाता है तो मीट के एंजाइम सब चले जाते हैं। सो ऑल मीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हैपेंस बिकॉज वो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब एक बड़े सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ। सो आई वॉज एबल टू नहीं बट मीट के लिए हमें जानवर तो मारना ही पड़ेगा। नहीं मैडम देखिए, अब वो तो मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो व्हाट आई डिड बेसिकली, आई सॉल्व दैट इक्वेशन। ये मेरा अपना एडवोकेसी है, इसको आप किसी भी लेवल पे लीजिए। तो और उससे वो एंजाइम्स प्रिजर्व हो जाते हैं। फिर देन आई एंडेड अप डेवलपिंग प्रोडक्ट लाइक जो हम बनाते हैं जो प्रोडक्ट। बट अगेन गोल वाज टू सॉल्व दैट इक्वेशन एंड प्रिजर्व द एंजाइम्स। अब उसकी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली मीट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मीट बहुत जल्दी डिस्कलर हो जाता है एंड इट गोज वेरी वेरी फास्ट, वेरी बैड। सो ये मेरा अपना एक आविष्कार है। हाँ, आविष्कार भी है, और मेरा अपना एक अपना पॉइंट है कि भाई आप मीट में और आप इसमें ये टेक्नोलॉजी भी उसी में या फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में मीट के लिए ही प्रोडक्शन भी किया जाता है। और मैडम आप चाहे देखिए डॉक्टर जयस और सब लोग जानते होंगे, दिस इज द मोस्ट स्टेबल सेक्टर फूड एक्चुअली बेसिकली इन नॉर्थ अमेरिका। आप देखते होंगे आईटी है, ये है, अभिनव भी इस चीज़ को बताएगा कि फूड जो है आपकी आईटी चली जाए, झंझों चली जाए, फूड इंडस्ट्री इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट स्टेबल इंडस्ट्री। वही उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो एंड आपको अच्छा लगेगा कि आपके ही एक एलुमनाई ने वाइट लोगों के सेक्टर में जो यू कैंट पेनिट्रेट दैट सेक्टर, मैंने उसमें डेवलप किया और मतलब जो दाद दी वो वहीं से दाद ली। और अब यही है मैडम, यहाँ पे हम लोग ये ऑफिशियल काम तो हो चुका, अब इसको हमारी बहुत सारी फैकल्टी अनऑफिशियल उससे, चूंकि ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। अब वो डॉक्टर साहब बाद में डिस्कस करते हैं। हमारी बहुत सारी फैकल्टी खड़ी हुई भी अपने है। सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं अपने को ग्रेटेस्ट बंडलबाज, लेकिन रंगबाज, लेकिन इनसे भी बड़ा कोई एक रंगबाज है।